I'm back again with another video. So today we'll learn about the low-level design of elevator management system. This question has been asked to me personally in Google for L4 position. Though it was a system, it was a DSA round, and Google is known for not asking low-level design question, but still bad luck. So yeah, let's move ahead. So these are the system requirements. And one more thing, you must have watched my video of singleton design pattern. The link will be in description. And as an optional, you should also watch strategy design pattern. Though I have not used strategy design pattern here, but I will give you as an homework. Okay. So these are the system requirement. Elevators, forget about these things. I'll tell you honestly. Like in your office building, also you have seen in one floor there are multiple elevators. है ना? In the ground floor, if you go, multiple elevators are there. Whichever button you press, one of the elevator will come there, right? So that management system you need to make. Now I will show you an overview of how that system works. Okay. So suppose this is your building, ठीक है? It has space for 3 elevators. Okay, and suppose these are the floors. Okay, and let's say initially your lift is somewhere here. Your first lift is at ground floor, second lift is somewhere here, third lift is somewhere here. This lift is idle, this lift is going up, or you can say maybe this lift is coming down. At any point of time, this lift is going up. Now suppose here somebody came in this floor number 1, and they want to go up, so they press the up button. Okay, now which of these 3 elevators will come at this floor? So this one is going down, right, and this one is idle. Okay, or wait, this is making a conflict. Let me do it like this. Suppose this one is also going up and this lift is idle. Now suppose somebody presses, maybe near this lift somebody presses the button, or somebody presses the button here, or maybe this lift also I will change. Let's say this lift is at here. Okay, now somebody can press the button here, can press the button here, can press the button here. Doesn't matter if they want to go up or go down, because once they go inside the lift, then only they will press the destination floor. Okay, so suppose the person presses the button here, you need to check if there is, like, which lift you need to choose. How will you decide it? So if the lift is coming in down direction, suppose any of these lift is coming in down direction, at some point of time they will reach this floor, this entire floor, right? This entire floor they will reach at some point. Okay, so you need to assign one of these lift for this floor. At some point of time, one of the lift will come here, but there can be multiple lift who are coming down at a given point of time. Let's say this lift was coming down, this lift was also coming down, है ना, and this lift was maybe going down. Okay,
एंड समवन प्रेसेस द फ्लोर बटन हेयर, ओके सपोज यहाँ पे बेसमेंट भी है, समवन प्रेसेस द बटन हेयर। अब ये दोनों ही लिफ्ट इस फ्लोर पे आएंगी, दोनों ही असाइन हो सकती हैं, है ना। मान लो, चलो इसको ऐसे ले लो कि ये ऊपर थी, ये नीचे आ रही थी, और ये वाली भी नीचे आ रही थी। तो ये दोनों ही नीचे के डायरेक्शन में, मतलब जिस फ्लोर में, जो सोर्स फ्लोर है जहाँ पे हमें कोई लिफ्ट पहुँचानी है, ये दोनों ही लिफ्ट कभी ना कभी इसमें आएंगी क्योंकि अभी नीचे मूव कर रही हैं, है ना। तो इन दोनों में से जो नियरेस्ट है, नियरेस्ट कौन सी है, ये वाली। तो ये वाली असाइन होनी चाहिए इस रिक्वेस्ट के लिए। भाई बटन दबाई तो यूज़र ने एक रिक्वेस्ट भेजी, फ्लोर नंबर 1 पे मुझे एक लिफ्ट चाहिए। अब कौन सी लिफ्ट तुम इधर रुकवाओगे, इन दोनों में से कोई भी रुकवा सकते हो, ठीक है। तो ये वाली नियरेस्ट है, इसलिए ये पहले पहुंचेगी, तो इसको नीचे भिजवा दो। अब सपोज करो यहाँ पे एक और फ्लोर होता, ठीक है, और तुम्हारी ये वाली जो लिफ्ट है वो यहीं पे होती, लेकिन वो ऊपर जा रही होती। तो अब तो यार ये दोनों नियरेस्ट है फ्लोर से, लेकिन ये अभी ऊपर मूव कर रही है ना, इसकी टेंडेंसी ऊपर मूव करने की है, तो ये पूरा राउंड ट्रिप मार के तब नीचे आएगी, जबकि इसकी टेंडेंसी नीचे मूव करने की है। तो लिफ्ट सिस्टम ऐसे ही काम करता है यार, जो लिफ्ट की टेंडेंसी इस फ्लोर के आने की तरफ है और नियरेस्ट है, उसको असाइन कर दिया जाता है ये फ्लोर का रिक्वेस्ट। तो ऐसे ही हमारा सिस्टम भी काम करेगा। बस सिस्टम में एक चीज़ होगी कि हर लिफ्ट की कैपेसिटी होगी। तो जब भी यूज़र कोई बटन प्रेस करेगा ना, हम ये मान के चल रहे हैं, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता भाई। एक्चुअल में आप बटन प्रेस करते हो, जब तक लिफ्ट आती है 50 लोग और आ जाते हैं, और लिफ्ट के अंदर जाने के बाद आप डेस्टिनेशन 4 डालते हो और आपको पता चलता है कि अरे 5-6 लोग और मेरे साथ उतर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे यूज़र जब भी बटन दबाएगा, रिक्वेस्ट करेगा लिफ्ट की, तो यहीं पे किसी तरह से वो इन्फॉर्मेशन दे देगा कि 5 लोग चढ़ेंगे जब भी लिफ्ट आएगी, और वो डेस्टिनेशन डालेगा तो बताएगा 5 लोग उतरेंगे, ठीक है। जब भी कोई बटन प्रेस होगी तो हमें पता लगेगा कितने लोग चढ़ने या उतरने वाले हैं, ठीक है। ये अगर इसको इतना डायनेमिक बनाएंगे ना कि हम रन टाइम में पता लगाएंगे कितने लोग उतरेंगे, कितने लोग चढ़ेंगे, तो ये आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो यही रिक्वायरमेंट है इस सिस्टम की। System should consist of multiple elevators serving multiple floor. Each elevator should have a capacity limit and should not exceed it. User should be able to request an elevator from any floor, है ना, and select a destination floor. Elevator systems will efficiently handle user request, optimize the movement of elevator. अभी जो optimize the movement of elevator to minimize waiting time है ना, वही यहाँ पे हो रहा है कि भैया एक लिफ्ट थी नीचे आ रही थी, ये लिफ्ट थी ऊपर जा रही थी, यूजर ने फर्स्ट फ्लोर पे रिक्वेस्ट भेजी, ये दोनों ही लिफ्ट यहाँ पे आ सकती हैं, बट इसकी टेंडेंसी नीचे आने की है, इसलिए ये वाली लिफ्ट भेजी जाएगी, ठीक है। अब सपोज कर लो कि ये ऊपर जा रही होती, ठीक है, और जो ये वाली लिफ्ट है वो नीचे आ रही होती। तो अब देखो फिर से ये वाली जो लिफ्ट है इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की है, इस लिफ्ट की टेंडेंसी नीचे जाने की है। तो सबसे पहले तो इसको ही देखा जाएगा। ये दूर है, डिस्टेंस इसका कम है, 2 है, इसका 1 है, फिर भी यही वाली देखी जाएगी, ठीक है। तो ये होती है कहानी ऑप्टिमाइज करने की सिस्टम को। अब देखो, सिस्टम शुड प्रायोरिटाइज रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल एंड द प्रॉक्सिमिटी ऑफ एलिवेटर। वही बात बोल रहा है कि पहले डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल को प्रायोरिटाइज किया जाएगा, उसके बाद अगर मल्टीपल लिफ्ट है जो नीचे की तरफ आ रही है, मतलब जो फ्लोर प्रेस हुआ है उसकी तरफ आ रही हैं, तो उस केस में देखा जाएगा कि कौन सी प्रॉक्सिमिटी में है, मतलब क्लोज है। एलिवेटर शुड बी एबल टू हैंडल मल्टीपल रिक्वेस्ट कंकरेंटली, मतलब हो सकता है लिफ्ट चल रही है, एक यूजर ने यहाँ दबाया, एक यूजर ने यहाँ दबाया, एक यूजर ने यहाँ दबाया, सबने एक साथ मिलके इन चारों ने, एक ने यहाँ, एक ने यहाँ, एक ने यहाँ, चारों ने एक साथ दबा दिया, वो भी हैंडल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप कि मान लो ये लिफ्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये ऊपर जा रही है क्योंकि ऊपर इसको किसी फ्लोर पे पहुंचना है, चल रही है, यूज़र ने नीचे वाला फ्लोर दबा दिया, तो क्या आप उसका डायरेक्शन छोड़ के तुरंत नीचे पहुंचा दोगे लिफ्ट को? नहीं ना, ऐसे नहीं काम करती ना लिफ्ट। भले ही लिफ्ट यहाँ पे थी, ऊपर जा रही थी, ऊपर उसे मान लो इस फ्लोर पे पहुंचना था, किसी यूज़र ने यहाँ पे प्रेस कर दिया, तो क्या आप लिफ्ट को वापस पहुँचा दोगे? नहीं, उसको पूरी राउंड ट्रिप मरवाओगे। तो कोड में मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा ना, एट एनी टाइम मुझे पता होगा कि कौन सी लिफ्ट मेरी कहाँ पे है, ठीक है।
और सपोज करो उस लिफ्ट के लिए यूज़र ने बटन प्रेस की, ठीक है, उस लिफ्ट के लिए यूज़र ने बटन प्रेस की एट एनी मोमेंट, ठीक है। मान लो ये लिफ्ट थी, इसके लिए यूज़र ने बटन प्रेस की। मैं दो प्रायोरिटी क्यों रखूँगा, ऊपर वाला होगा मिन हीप, नीचे वाला होगा मैक्स हीप। मैं देखूंगा कि जो रिक्वेस्ट आई है उसमें जो फ्लोर है जिस पे जाना है लिफ्ट को, अगर वो ऊपर है लिफ्ट के करंट पोजीशन से, तो मैं उस फ्लोर को मिन हीप में डाल दूंगा। उससे फ़ायदा क्या होगा, हमें पता होगा कि लिफ्ट अभी ऊपर जा रही है तो नेक्स्ट फ्लोर कौन सा होगा, मिन हीप का टॉप का एलिमेंट है ना, उस पर जाके रुकेगी। सिमिलरली अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो मैक्स हीप का टॉप का एलिमेंट है ना। तो इससे मुझे पता लग जाएगा कि लिफ्ट की अगली रुकने वाली पोजीशन कहाँ है, नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट प्रोसेस होने वाली है वो कौन सी है ना। भाई यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते ना, बटन दबाई तो तुरंत लिफ्ट अपना डायरेक्शन छोड़ के उसके पास आ गई। जो रिक्वेस्ट पहले आई थी पहले वहाँ जाएगी लिफ्ट, है ना। पहले से ऑलरेडी लिफ्ट ऊपर जा रही है, उसको यहाँ यहाँ पहुँचना है, आपने तुरंत नीचे वाली दबा दी तो वो डायरेक्शन चेंज करके नीचे थोड़ी आ जाएगी, पूरा राउंड ट्रिप मार के आएगी। तो इसीलिए प्रायोरिटी क्यू मैं क्यू यूज़ करूँगा, प्रायोरिटी क्यू। और कोड में कुछ भी नहीं करूँगा, सबसे पहले चेक करूँगा कि कौन कौन सी लिफ्ट मैं फ्लोर में ला सकता हूँ। जिन लिफ्ट्स को ला सकता हूँ उनमें से प्रॉक्सिमिटी किसकी अच्छी है, ठीक है। तो वही कोड में मैंने किया है, चलो देखते हैं कैसे किया है। एंटिटी यहाँ पे सिर्फ एक होगी एलिवेटर, डायरेक्शन 0 मतलब आइडल, 1 मतलब ऊपर, -1 मतलब नीचे, कैपेसिटी मतलब कितने लोग आ सकते हैं, लोड मतलब करंट लोड कितना है, ठीक है। करंट फ्लोर कौन सा है ये। अब एक प्रायोरिटी क्यू, ये अप क्यू है, बेसिकली ये होगा तुम्हारा मिन हीप, डाउन क्यू है, ये होगा तुम्हारा मैक्स हीप, ठीक है। और सिंटैक्स में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है, वो देख लेना यार तुम जावा का, ठीक है। और जो प्रायोरिटी क्यू है, टाइप इसका क्या है, रिक्वेस्ट टाइप है, ठीक है। रिक्वेस्ट क्या है, बेसिकली यूज़र जब यहाँ पे बटन प्रेस करेगा तो एक तो फ्लोर होगा जिस फ्लोर पे लिफ्ट लानी है, और कितने लोग यहाँ चढ़ने या उतरने वाले, वो इनका जो पेयर है ना, जावा में कोई ऐसे पेयर टाइप का क्लास नहीं होता है C++ की तरह, तो उसको मैं रिक्वेस्ट मान के रिक्वेस्ट क्लास के अंदर डाल दूंगा। उसमें दो पैरामीटर होंगे, एक होंगे नंबर ऑफ पर्सन, एक होगा फ्लोर, ठीक है। तो ये दो प्रायोरिटी क्यू मैंने बना दी है। अब जो रीइटरेंट लॉक है ना, ये बेसिकली थ्रेड सेफ्टी के लिए होता है। ये सिर्फ इतना बताता है कि मल्टीपल थ्रेड ने कंकरेंटली भी अगर कंकरेंटली मल्टीपल थ्रेड ये लॉजिक अगर इम्प्लीमेंट करने आ रहे हैं तो लॉक लेने के बाद कोई एक ही थ्रेड एक बार में इस लॉजिक को एग्जीक्यूट कर पाएगा। वरना होता क्या यार, दो अलग अलग थ्रेड आते, एक बोलता कि यार 10 पीपल चढ़ने वाले हैं, एक बोलता 5 चढ़ने वाले हैं, और कैपेसिटी मान लो 5 की होती। थ्रेड 1 अगर पहले एग्जीक्यूट हो जाता, अगर हमने लॉक नहीं लिया होता, थ्रेड 1 पहले एग्जीक्यूट होता तो हम लोग बोलते हैं हाँ बढ़िया है, चलो ऊपर चलो, 5 लोग की कैपेसिटी थी, 5 आ रहे हैं तो और अगर मान लो 10 वाला थ्रेड पहले यूज कोड को एग्जीक्यूट करता तो वो बोलता, एक्सेप्शन भेज देता कि यार कैपेसिटी ज़्यादा है। तो क्योंकि लॉकिंग नहीं थी तो कभी थ्रेड 1 एग्जीक्यूट होता, कभी थ्रेड 2 एग्जीक्यूट होता, सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं रहता, ठीक है। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद वही जो स्टैटिक क्लास रिक्वेस्ट जो मैंने आपको बताई थी ना, पेयर होगा, फ्लोर और पीपल कितने इंटर होने वाले हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी उसका कंस्ट्रक्टर है। इसको स्टैटिक क्लास क्यों बनाया, स्टैटिक क्लास इसलिए बनाया कि बिना एलिवेटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए भी हम रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है ना कि एक रिक्वेस्ट डालने के लिए हमेशा बार बार हमें एलिवेटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़े, जरूरी नहीं है ना, ठीक है। एलिवेटर तो एक बार फिक्स होंगी सिस्टम में, जो एडमिन बना के भर देगा। उसके बाद एक ही क्लास होगी एलिवेटर मैनेजर टाइप की। इस क्लास को सिंगलटन क्यों बनाया गया है, क्योंकि यार हज़ारों यूज़र हैं, हज़ारों जगह बटनें दबा सकते हैं तो ऑब्जेक्ट एक्सप्लोजन हो सकता है। हज़ारों यूज़र अगर इस क्लास के किसी फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट उन्हें चाहिए होगा। तो हज़ारों ऑब्जेक्ट मेमोरी पे रन टाइम में बन सकते हैं कि कंकरेंसी हैंडल करनी है हमको, तो वो ऑब्जेक्ट एक्सप्लोजन का कारण बनेंगे। दूसरी बात हाँ, दूसरी बात कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इस क्लास को हमने सिंगलटन बनाया है। मेरा सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न का वीडियो देखना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको पता लग जाएगा सिंगलटन कब यूज़ करते हैं। मैं ओवरव्यू दे रहा है यहाँ पे कि किसी भी क्लास को सिंगलटन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसी के टाइप का एक डेटा मेंबर बना देते हैं, उसको स्टैटिक कर देते हैं, ठीक है। और एक गेट इंस्टेंस नाम का फंक्शन बना देते हैं जो कि रिटर्न करता है इस क्लास के टाइप के एक वेरिएबल को, और वहाँ पे चेक कर लेते हैं कि पहले से कोई इंस्टेंस बना है कि नहीं। अगर नहीं बना है तो बना देते हैं, अदरवाइज पुराने ही रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें ऐड एलिवेटर एक फंक्शन है, एडमिन आएगा, वो नई एलिवेटर इंस्टॉल कर सकता है। रिक्वेस्ट एलिवेटर ना, ये जो चीज़ है ना,
ये यूज़र करेगा। मतलब मैं आप लोग जब बटन दबाएंगे तो एक फ्लोर जाएगा लिफ्ट के पास कि इस फ्लोर के लिए रिक्वेस्ट आई है, इतने लोग चढ़ने या उतरने वाले हैं। नेगेटिव होगा तो उतरेंगे, पॉजिटिव होगा तो चढ़ेंगे लोग, ठीक है। अब देखो, पहले एलिवेटर इनिशियली सिलेक्ट मैंने कुछ भी नहीं किया, नल है, डिस्टेंस भी इंट मैक्स है। अब देखो, जितनी भी लिफ्ट में एलिवेटर होंगी ना, ये एलिवेटर्स डॉट वैल्यूज़ क्या कर रहा है, ये जो मेरे पास एक मैप था जिसमें एलिवेटर की आईडी के साथ एलिवेटर का ऑब्जेक्ट मैप हो रहा था, सारी वैल्यूज उठाई, उन पे लूप चलाया, ठीक है। एक एक करके वो एलिवेटर्स उठाएगा, एलिवेटर डॉट लॉक लॉक लगाएगा। अब ये आप श्रद्धा दीदी की वीडियो में देखते ना, वो उन्होंने बताया हुआ है शायद ये क्या होता है। मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, वरना बहुत टाइम स्पेंड होगा, बस इतना बता दे रहा कि थ्रेड सेफ्टी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एक एलिवेटर उठाएगा, देखेगा कि उसका डिस्टेंस कितना है, तो करंट फ्लोर जो एलिवेटर का है, एलिवेटर क्लास के अंदर करंट फ्लोर की प्रॉपर्टी थी ना, वहाँ से पता लग जाएगा कि करंट फ्लोर क्या है एलिवेटर का, माइनस जो फ्लोर की रिक्वेस्ट आई है, तो इससे डिस्टेंस पता लग जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब ऐसा हो सकता है कि करंट फ्लोर ऊपर है, लिफ्ट नीचे है, करंट फ्लोर नीचे है, लिफ्ट ऊपर है, जो भी है उसका एब्सोल्यूट ले लेंगे, तो इससे डिस्टेंस बस हमें पता लग गया। अब असली कहानी यहाँ पे हो रही है। अगर एलिवेटर का डायरेक्शन 0 है मतलब एलिवेटर आइडल है, या एलिवेटर का डायरेक्शन 1 है मतलब ऊपर जा रही है, और जो फ्लोर रिक्वेस्ट किया गया है वो ग्रेटर देन एलिवेटर डॉट करंट फ्लोर है, मतलब लिफ्ट ऊपर जा रही है और फ्लोर भी ऊपर का ही रिक्वेस्ट किया गया है, या लिफ्ट नीचे जा रही है -1 और फ्लोर भी नीचे का रिक्वेस्ट किया गया है, ठीक है। ये सब कहानी में इनमें कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, और जो डिस्टेंस है करंट लिफ्ट का वो मिन डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये लिफ्ट सिलेक्ट की जाएगी। तो बेसिकली कर क्या रहा है, 1 बाय 1 एक एक लिफ्ट को चेक करेगा और देखेगा कौन सी लिफ्ट एलिजिबल है। तो सबसे पहले देखेगा कि लिफ्ट जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में फ्लोर रिक्वेस्ट किया गया है कि नहीं, या फिर लिफ्ट आइडल है, ठीक है। उसके बाद चेक करेगा कि इस लिफ्ट का डिस्टेंस प्रीवियसली जितनी भी एलिजिबल लिफ्ट थी उनके डिस्टेंस से कम है कि नहीं। अगर कम है तो सिलेक्टेड में ही करंट वाली ले लेगा एलिवेटर, ठीक है। ये सब एग्जीक्यूट होने के बाद लॉक यहाँ से छुड़ा देंगे, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, मल्टीपल थ्रेड आएंगे ना, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी उसके बाद कोई एक ही थ्रेड इस लॉजिक को एग्जीक्यूट कर पाएगा। अब देखो, अगर मान लो कोई भी मतलब कोई ना कोई एक लिफ्ट तो होगी जो एलिजिबल होगी, मान लो वो मिली, ठीक है, तो फिर से हमने लॉक लिया, ठीक है, मतलब ये जो सिलेक्टेड वेरिएबल है इस पे लॉक लिया, तो इसको मल्टीपल मतलब जो थ्रेड अभी एग्जीक्यूट कर रहा है उसके अलावा दूसरे नहीं एग्जीक्यूट कर पाएंगे, चेंज नहीं कर पाएंगे उसकी वैल्यू, ठीक है। तो एक लिफ्ट हमने एग्जीक्यूट की। अब देखो, जो फ्लोर रिक्वेस्ट किया गया है वो लिफ्ट के करंट फ्लोर से ऊपर है, मतलब जो लिफ्ट हमने सिलेक्ट की है वो लिफ्ट से ऊपर है रिक्वेस्टेड फ्लोर। मतलब जो लिफ्ट हमने सिलेक्ट किया है वो मान लो 5वें फ्लोर पे है और रिक्वेस्टेड फ्लोर है 9वां फ्लोर, ठीक है। तो जो सिलेक्टेड लिफ्ट है उसके अप क्यू क्या था, मिन हीप ऊपर वाला, उसमें ऐड हो जाएगी ये रिक्वेस्ट। अब देखो, मैंने आपको बताया था पेयर नाम का कोई ऑब्जेक्ट क्लास नहीं होता है, इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट एक स्टैटिक क्लास इनर नेस्टेड क्लास बनाए थे, उसमें फ्लोर और पीपल पास कर रहे हैं, ठीक है। एलिवेटर डॉट रिक्वेस्ट फ्लोर और पीपल पास कर रहे हैं, तो ये जाके मिन हीप में चला जाएगा। एल्स फ्लोर अगर नीचे है तो मैक्स हीप में चला जाएगा और फिर लॉग इससे छूट जाएगा। तो जो भी लिफ्ट हमने सिलेक्ट की थी ना उसके मैक्स हीप या मिन हीप में ये रिक्वेस्ट चली गई है। इससे फ़ायदा क्या होगा आगे बताता हूँ। ये है लिफ्ट के मूव कराने का लॉजिक, ठीक है, लिफ्ट को मूव कराना है। तो एलिवेटर पास करोगे आप, पहले तो उस पर लॉक लोगे, तो जो थ्रेड अभी इस कोड को एग्जीक्यूट कर रहा होगा उसके अलावा कोई भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा जब तक ये लॉक छोड़ ना दिया जाए नीचे, ठीक है। अब देखो, एलिवेटर का अगर अप क्यू यानी ऊपर वाला क्यू यानी मिन हीप एम्प्टी नहीं है, ठीक है, सॉरी एम्प्टी है, और डाउन क्यू भी एम्प्टी है, तो बेसिकली लिफ्ट के पास अभी कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है, ना ऊपर जाने की ना नीचे जाने की। ये जो मिन हीप मैक्स हीप बस इतना बताते हैं कि लिफ्ट को अभी मूव करना है, कोई रिक्वेस्ट आई हुई है, ठीक है। अगर कोई रिक्वेस्ट नहीं आई तो उसको आइडल कर दो, डायरेक्शन 0 रिटर्न। अदरवाइज अगर लिफ्ट आइडल है, ठीक है, और उसका जो अप क्यू है वो एम्प्टी नहीं है तो डायरेक्शन उसका 1 कर दो कि ऊपर जाएगी, अदरवाइज डायरेक्शन -1 कर दो। और जो करंट फ्लोर है उसमें प्लस इक्वल टू एलिवेशन डॉट डायरेक्ट DIR किया है। बेसिकली प्लस इक्वल टू 1 या -1 कर सकते थे, बट जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में तो एक कदम मूव करेगी ना, अभी जो टेंडेंसी है लिफ्ट की, ठीक है। अगर ऊपर जा रही है तो एक फ्लोर ऊपर मूव करेगी, नीचे आ रही है तो -1 हो जाएगा, नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो एलिवेटर का फ्लोर यहाँ से चेंज होगा, ठीक है। अब देखो मेन कहानी, डायरेक्शन अगर 1 है मतलब ऊपर जा रही है
और अप क्यू उसका नॉन एम्प्टी है। तो अप क्यू यानी कि मिन हीप था, मतलब वो लिफ्ट ऊपर जा रही है और मिन हीप का टॉप का एलिमेंट यानी कि नियरेस्ट ऊपर का फ्लोर, ठीक है, लिफ्ट जिस डायरेक्शन में यानी ऊपर वाले डायरेक्शन में है, तो नियरेस्ट फ्लोर कौन सा होगा जिसमें उसको जाना है, ठीक है। अगर लिफ्ट का करंट फ्लोर वही है ऊपर वाला फ्लोर, तो बेसिकली वो जो क्यू है उसमें से तुम उस रिक्वेस्ट को निकालो, मतलब टॉप एलिमेंट को, ठीक है, और देखो कि वो जो रिक्वेस्ट आई थी उसमें कितने लोग चढ़ या उतर रहे थे, ठीक है। तो उतर रहे होंगे तो नेगेटिव होगा ये रिक्वेस्ट डॉट पीपल इंटर, चढ़ रहे होंगे तो पॉजिटिव होगा। एलिवेटर का करंट लोड कितना है, कितने लोग हैं उसमें ऐड करके देखो, अगर वो कैपेसिटी से एक्सीड करता है तो एक्सेप्शन भिजवा दो, अदरवाइज एलिवेटर का करंट लोड बढ़ा दो, ठीक है, बढ़ा दो या घटा दो। पीपल इंटर अगर नेगेटिव होगा तो घट जाएगा, पॉजिटिव हो तो बढ़ जाएगा। सिमिलरली नीचे का लॉजिक है, एलिवेटर का डायरेक्शन -1 है, मतलब वो नीचे जा रही है, डाउन क्यू उसका नॉन एम्प्टी है। अब चेक करो कि नीचे का जो नियरेस्ट फ्लोर है, ठीक है, मतलब मैक्स हीप का टॉप एलिमेंट, क्या वो लिफ्ट का करंट एलिमेंट है, करंट फ्लोर है? अगर वो करंट फ्लोर है तो चेक करो फिर से वही चीज़ कि जो पीपल इंटर थे, लोग चढ़ने या उतरने थे करंट फ्लोर पे, और लोड पे प्लस करो वो कैपेसिटी से ज़्यादा है कि नहीं। अगर ज़्यादा है तो एक्सेप्शन भिजवा दो, अदरवाइज लोड को अपडेट कर दो, ठीक है। अगर अब क्यू भी एम्प्टी है, डाउन क्यू भी एम्प्टी है, तो डायरेक्शन सिंपली 0 करो और आखिरी में लॉग को छोड़ दो। तो देखो यार, ये मेन क्लास है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले मैनेजर क्लास का गेट इंस्टेंस यूज़ करके हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हम लोग न्यू कीवर्ड नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग गेट इंस्टेंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये सिंगलटन है इसलिए। अब एक हमने एलिवेटर बनाई, ठीक है, उसमें ID 1 दी, कैपेसिटी 5 दी। सिमिलरली दूसरी एलिवेटर की ID 2 दी, कैपेसिटी 4 दी। अभी जो मैनेजर क्लास थी, जो इतनी बड़ी क्लास मैंने एक्सप्लेन किया, वो ये पूरी क्लास, ठीक है, उसका हमने यहाँ पे ऐड एलिवेटर फंक्शन कॉल किया, तो ये दोनों एलिवेटर जाके ऐड हो गई इस सिस्टम में। तो सिस्टम में ऐड एलिवेटर जो फंक्शन है हमारा, वो ये रहा, तो कुछ नहीं, जो एलिवेटर की तुम्हारे पास मैप है उसमें जाके ID और एलिवेटर का ऑब्जेक्ट डाल देते हो, ठीक है। और उसके बाद एक यूज़र आता है, वो 3rd फ्लोर के लिए रिक्वेस्ट डालता है और बोलता है कि 2 पीपल चढ़ेंगे। एक और यूज़र आता है, वो 5वें फ्लोर के लिए रिक्वेस्ट डालता है, बोलता है 1 आदमी चढ़ेगा। तो सेम लॉजिक जो मैंने बताया था, रिक्वेस्ट एलिवेटर फंक्शन जो है वो यहाँ पे है। तो फ्लोर था और कुछ लोग थे, तो सबसे पहले देखा जाएगा कि कौन सी लिफ्ट को असाइन करवाना है इस फ्लोर के लिए, ठीक है। एक एक करके सारी लिफ्ट उठाएंगे, चेक करेंगे कि क्या वो लिफ्ट के जिस डायरेक्शन वो मूव कर रही हैं, ये फ्लोर भी उसी डायरेक्शन में आएगा। अगर आएगा तो वो लिफ्ट एलिजिबल होंगी। उन एलिजिबल लिफ्ट में जो सबसे पास होगी, उसी लॉजिक को चेक कर रहा है ये फंक्शन, वही लिफ्ट असाइन हो जाएगी। मतलब उस लिफ्ट के मैक्स या मिन क्यू में ये वाली रिक्वेस्ट चली जाएगी। इतना ही होता है भाई। और आखिरी में क्या होता है, एक एक एलिवेटर हम उठाते हैं, ठीक है, और उनका मूव फंक्शन कॉल कर देते हैं 10 फ्लोर के लिए, ठीक है। तो ये मूव फंक्शन एक बार में एक फ्लोर चढ़ाता घटाता है, ठीक है। यही बस इतना सा लॉजिक है यार, इतना ही आपको इम्प्लीमेंट करना है। अब इसमें आप मेरे को बताओ कि कहीं भी ऐसी सिचुएशन बन रही है जहाँ पे एक काम है जिसको करने के मल्टीपल तरीके हैं और फ्यूचर में कोई नई पॉसिबिलिटी ऐड हो सकती है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन कोड आप लिख के लाओगे, ये आपका होमवर्क है। तो देखो यार, ये जो लिफ्ट असाइन करना है वो इकलौता काम है जिसको करने का अभी तो एक ही तरीका है, प्रॉक्सिमिटी, है ना, जो सबसे पास में लिफ्ट, जिसकी टेंडेंसी सबसे पहले वहां आने की है। अब एक और तरीका फ्यूचर में आ सकता था, कैपेसिटी वाइज, मतलब जिस लिफ्ट का लोड अभी सबसे कम है वो वाली लिफ्ट असाइन कर दो। ये लॉजिकल हो सकता है ना भाई, कि एक लिफ्ट, 3 लिफ्टें हैं, तीनों नीचे आने की टेंडेंसी है, जिसकी सबसे कम लोड है वो वाली असाइन कर दो, ठीक है।
तो यही था आज का लो लेवल डिज़ाइन का वीडियो, एलिवेटर डिज़ाइन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसको पढ़ा नहीं था 2017 में भी, मुझे लगा था अभी पूछा नहीं जाएगा, बट अभी 2025 अप्रैल में ही पूछ लिया गया मुझसे। बड़ा डिसहार्टनिंग था क्योंकि L4 पोजीशन थी। गूगल इज़ नोन फॉर नॉट आस्किंग डिज़ाइन क्वेश्चन फॉर L4 लेवल, बट स्टिल दे आस्क्ड। तो पुरानी बातें भूल जाते हैं। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अलविदा दोस्तों।